So we will see how to generate a random numbers from a Box-Muller method from a normal distribution. So we wish to generate a random numbers from a normal distribution, standard normal, using the Box-Muller method. So how to obtain the Box-Muller method? What is the Box-Muller method? So that we have seen in the previous lectures. So first generate two uniform random numbers, u1 and u2, and then you can either you can perform the step 2 or you can directly come to the step 3, and you generate the pair of random numbers from a normal distribution by using this formula: square root of minus 2 ln u1 cos of 2 pi u2. That is generating one random numbers from a normal distribution, and this is the square root of minus 2 ln u2 into sine 2 pi u2 u1 u2. So it is giving the pair of random number generation. So that we will generate the, let us say, 50 random numbers from a standard normal distribution. It is as good as that we have to generate the pair of 25 random numbers from a normal distribution. Both x and y are independent. So let us go to the directly R to write a program for that. Then we will also generate from the other method, Marshall-Glea methods, for generation of a random number. And then we will talk about the some ad hoc method. Suppose if I wish to generate a random numbers from a gamma distribution, T distribution, F distribution. So we will use the property of a normal distributions, and then we can generate. So they all are said to be ad hoc method. So first we generate 50 random numbers from normal 0 1 using Box-Muller method. So what is the step 1? Step 1 is saying that Generate two random generate numbers two from uniform. random numbers from a uniform distribution. Because I wish to generate this, how many? 50. So of course what I have to do? I have to use the for loop, or we For loop. can use the while loop. Okay, but that should be of a 25 times. So it will generate the pair of random numbers. Okay, so what we do? We first let us give the x as a vector of numeric. We wish to generate the pair, so we say that y is a vector of numeric. Now because I wish to generate 50 random numbers, so I'll give n is equal to 50. Now I will also declare another variables because I wish to ultimately store all 50 variables into the together. Earlier they are separately. So what we do? N equal to 50. Then I is equal to 1. While I less than or equal to, what I do? N. N by 2. It will generate 25 random pair of random variables. Or I can say here m equal to n by 2. I can give here m. What is the first step? First I have to generate uniform random numbers 1. So R unif 1. Second I have to generate U2 equal to R unif 2. Then I have to generate x of I is equal to, what is the formula? It is saying that
square root of minus 2 ln u1. It is a sqrt minus 2 into log u1 into, what is that? It is a cos 2 pi u2. So cos 2 into pi. Pi means pi into u2. Okay? And I will generate the yi is equal to, what I do? minus 2 sqrt of sqrt of minus 2 log u2. minus 2 log u1 ही है, u2 नहीं है, वो भी u1 ही है. U1. अच्छा मैंने लॉन्ग लिखा है फिर. वहाँ पे बाद में करेक्ट किया है उसको. cos की Sin जगह पे of वहाँ पे Sin हो जाएगा. sin Sin of 2 2 into pi u2. pi I into u. ठीक है. This will generate the pair of random numbers. मुझे तो क्या चाहिए, x1 के x1 y1 है, तो I wish to write them as a z1 z2. So what I do? After this I can print here x and y. Then I can use 4 I in 1 to n is a 50. Then what I do? Z is equals to zi is equals to If I modulo 2, is it equal to 0? मॉड्यूलो में डबल परसेंटेज सही ही है ना इसमें, और हाँ प्लस प्लस में Yes, sir. सिंगल है, देखना पड़ेगा. देन व्हाट हैपन, वी विल प्रिंट if else. Let us try what happen, you will see. Okay, then if this is the case, comma z of I is assigned as xi. Am I right? Else z of I assigned as YI. eh? yi. सही है, गड़बड़ है? Can we write? लॉजिक नहीं समझा, मतलब जेड आई क्यू कब दे, जेड में एक्स आई कब दे रहे हैं और वाई आई कब दे रहे हैं, वो लॉजिक नहीं समझा. I को 2 से डिवाइड करेंगे और आंसर 0 आया तो हम क्या करेंगे, z को z को y1 असाइन करेंगे. ओके ठीक हाँ है, समझ तो गया. और अदरवाइज मैं x1 असाइन करूंगा, समझ गया, ऑल्टरनेट असाइन करना है. ऑल्टरनेट असाइन करना है, लेकिन वो चलेगा? आई एम डाउटफुल. चलेगा मोस्टली. कहाँ से चलेगा, बिकॉज y के अंदर तो 25 ऑब्जर्वेशन है, x हैविंग आल्सो 25 ऑब्जर्वेशन, तो वेदर इट विल वर्क, Let's see. लिटिल बिट डाउट. वहाँ पे आई थिंक फॉर लूप में हमने n दिया है ना, वहां पर मेरे हिसाब से दिक्कत होगा क्योंकि n 50 है और अपने 25 रैंडम नंबर्स ही है. तो वही तो मैं बता रहा हूँ. देन व्हाट वी डू, एक बार इसको रन करके देखते क्या आता है, फिर उस हिसाब से और चेंज कर सकते हैं हम. Yes. okay, let's try.
See, you can see that this red button, it is still continue. It is running the program. So there is a mistake. Why? Because while loop we have applied, we have not given the increment I equal to I plus 1. So it is looking for increment. Okay. In for loop there is no issue. But in while loop it is looking for increment. I'll just select this. Now it is giving the output. Yes. 50 random number X are generated, 50 Y are generated. Or you can also write here together C bind X comma Y. It is showing you that 25X and 25Y. And you can see that this all lies between 0 to 1 1 नहीं and वन में नहीं, वन से ज्यादा हो रहा था, तो इसका मतलब 1 कुछ है गड़बड़ वन से ज्यादा इंक्रीज हो रहा टू भी आया है। यहाँ पे ओके तो हाँ आएगा ना, हमारा क्या जाता है। हमने कहाँ कहा कि वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। यस इट सर। इज ए normal distribution. Standard normal is lies between minus infinity to infinity. So it can infinity take. So there is no issue. But when we find its mean, it should be 0. And variance should be 1 1. Okay. So now if I will work that, it will give the rest of the garbage Q. Look, it has only taken the 25 observation. Because here it is not, because the rest of the 25 are not thing in X and Y. So this means this loop is not working. So how to do that? Because and X and Y having only how many observation? 25 25 So it will not work. वहाँ पे m देके 1 to m हाँ, कर सकते हैं एन की जगह पे एम। Hmm? If you give the n by 2, तो वो 25 observation लेगा. It is only एम जब taking कर देते, है m कर एन दो बाई तो टू की जगह एम कर देते हैं सर। वो तो 25 observation लेगा ना. एक वो it will take 25. अगर I equal to क्या है, even है, तो y1 का ऐड करेगा, नहीं वो y2 का लेगा, वो भी गड़बड़ हो रहा है. हमें तो क्या चाहिए कि x1 x1 y1 that should be stored into the z1 z2. I need x2 y2 that should be stored into the z3 z4. So this loop is not working. So how should I? Are you getting my point? हाँ सर I have this information. Now you have to suggest me the logic. What we do? I have given this information x1, y1. Hello. Yes. So we are giving both Z, ZI given value like ZI equals to YI and XI. So this will That be giving see, you're right. We have not given the correct, but that is what I am saying. That what kind of the things we should change. I am looking we, actually this way. Z1 is equal to x1, Z2 equal to y1, we can take Z3 I and equal J. to x2, Z4 equal to y2. हम लोग दो लूप That नहीं लगा सकते इसमें, है. आप दो फॉर लूप लगा के आई एन जे का जैसे उन्होंने बोला अभी, एक दूसरे के लिए असाइन करेंगे और सेकंड वाला जो रहेगा हम लोग इसके लिए इवन ऑड के लिए। बताइए. I am looking for this way. I wish assignment in this way exactly. मैं सीधा एक के नीचे दूसरा भी कर सकता हूँ ना. Z इज इक्वल टू मैं दे सकता हूँ R बाइंड, तो अपने आप हो गए 50. मुझे फॉर लूप की भी जरूरत नहीं है. आई कैन डायरेक्टली कि पहले 25 ऑब्जर्वेशन x के और उसके बाद, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉर्मल, देर इज नो यस इश्यू. इफ यू कैन बाइंड जस्ट R बाइंड, यू कैन डू दैट. जैसे मैंने C बाइंड किया, आई कैन डू R बाइंड. सपोज इफ आई एम गिविंग Z इक्वल टू R बाइंड x comma y, there is no issue. It will give me the 50 random numbers. It is it giving?
इज नॉट गिविंग अगेन। नहीं सर, दे रहे हैं अभी। दे रहा है ना सर, ऊपर नीचे सी ऊपर बाइंड नीचे। करेंगे सर, और सी बाइंड करेंगे तो शायद साथ में दिख जाए अपने आप। की बैंड में साथ में दिखेगा। यस सर। मुझे एक के नीचे एक सब डालना है तो ये तो मैट्रिक्स बनेगा ना, आर बैंड इज ऑल्सो मैट्रिक्स, यस सर। सी बैंड में भी मैट्रिक्स बनेगा, बट आई एम लुकिंग फॉर ओनली वन, so that means I require to assign. So how to assign? So I have to assign in that way कि एक one approach is that I can just ये 25 तक जाएंगे, तब मैं यहाँ पे असाइन करूँगा क्या, z का, फिर वापस मैं उसको i को 20m+1 से लेके n तक ले जाऊँगा, फिर मैं y असाइन करूँ। I can do that, but I am looking for the, तो इसकी भी ज़रूरत है क्योंकि सर अभी सुकीर्ति ने बोला ना, वो हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा कि हम लोग 2 फॉर लूप लेंगे। अगर तो एक दो में, किया तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, एक में आप 1 से 25 तक ले जाओ। हाँ लेकिन सर वैसा लगाएंगे ना कि एक बार फर्स्ट लूप में एक बड़ा लूप बनाएंगे, उसके अंदर 2 छोटे फॉर लूप्स डालेंगे, जब इवन रहा तो फर्स्ट लूप में जाएगा और रहा तो सेकंड लूप में जाएगा। यस। 2 इफ एल्स स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है, उस वाइल फॉर लूप नहीं, शायद वाइल लूप में चलेगा ये। चलो मैं वाइल लूप लेता हूँ, वाइल लूप में कंडीशन देना पड़ेगा, वाइल i लेस देन इक्वल टू एंड n%, वो नहीं मॉड्यूलो लगाना पड़ेगा, इवन रहेगा तो फर्स्ट लूप में जाना है उसको, ऑड रहेगा तो सेकंड लूप में जाना है। क्या, वो तो मॉड्यूलो अभी आएगा ना, मॉड्यूलो तो हाँ अब फोर Yes, लूप sir. जाना है, हाँ सर अब करेक्ट। फोर लूप में जाना है, अभी आई इवन ओड का सवाल ही नहीं है ना। ये हो गया आपका, सर एम हट जाएगा ना वहां से अभी। एम एम आएगा ना, 25 ही ऑब्जर्वेशन है ना अपने पास, तो इसको इवन भी करने की जरूरत नहीं है ना, हाँ ये अंदर लेटेस्ट से जे करना पड़ेगा हमें, हाँ इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा। इंडेक्स चेंज करना रहेगा ऐसे। एंड ये आएगा जे टू एम, ठीक है, ये फेल्स में आए यहाँ पे जे आ जाएगा आई फिर। नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, ये आएगा ना सर वहाँ तो पे। जे हो जाएगा ना ये। तो ये z1 आएगा, ये z j आएगा, ऐसा है 6j। ओके। तो ये तो क्या हो गया, i नॉट इक्वल टू j, सपोज i इक्वल टू 1, 1 नॉट इक्वल टू 2, 0 है नहीं है, तो z1 में क्या असाइन करेगा वो, z1 में क्या करेगा, x1 सॉरी y1 असाइन करेगा, x1 करेगा ना, y1 नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा नॉट तो इक्वल x नॉट आएगा। इक्वल तो x1 करेगा, ठीक है। और इक्वल्स टू रहेगा तो अगर इक्वल्स टू आया नेक्स्ट तो फिर y2 आ जाएगा। फिर क्या y1 करेंगे, i 1 आ गया, ठीक है, तो ऐसे घूमता रहेगा, i नॉट इक्वल टू 2 अगर है तो क्या करेगा, i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 आया तो z2 में क्या करेगा, वो y2 असाइन करेगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, y1 चाहिए ना, तो ये तो कितनी बार रिपीट, हर बार रिपीट करेंगे तो पागल हो जाएंगे इसको। हम 2 लूप ना किया तो नहीं चलेगा, 2 लूप के बिना अल्टरनेट कैसे आएगा फिर? ऑल्टरनेट आया ना, आई बदल रहा है ना, हाँ सपोज यहाँ पे आपने ये क्या होगा, दिस 25 बार घूमेगा ये, हाँ आई एक ही आएगा, ये 25 बार घूमेगा, आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है नहीं है, तो z1 में क्या करेगा, x1 करेगा, सपोज आई 2 है तो मॉड्यूलो 2 क्या है, तो उसमें क्या करेगा, मॉड्यूलो z2 में y1 करेगा, y1 करेगा। y1 जाएगा ऐसे। लेकिन वो तो हमेशा 1 और 2 में ही चिपका रहेगा, सर हमको जे का भी इंक्रीमेंट देना हमें तो पड़ेगा। इन j का भी इंक्रीमेंट चाहिए, यस सर।
एक लूप और डाल के तो समझे ये कंक्रीमेंट। इसमें नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स ओनली वाला नहीं चलेगा, क्या करेंगे, ओनली इफ रखते हैं ना फिर, इफ रखना पड़ेगा। ऐसा। फिर एल्स पार्ट निकाल के एक और इफ लूप लग जाएगी अपना। अगर ऐसा है तो हम क्या असाइन करेंगे, जेड आई इक्वल टू वाई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, J2 लेगा, लेकिन वो तो चलता रहेगा ना, J का इंक्रीमेंट तो फोर लूप में आ ही रहा है, तो वाई शुड आई अननेसेसरी गिविंग। बस यही सारी चीजें होती है व्हेन यू गो टू दी रियल लाइफ। हमें लगता है कि फोर लूप वाइल लूप हम जानते हैं, वी कैन डू, बट वी कैन नॉट। इसको हम मैन्युअली पहले लिखें so that we can, now what we do, वो मैन्युअली करना है हमें, तो what I am looking कि I equal to 1, at that time Z1 is equal to X1, then I equal to 2, Z2 equal to Y1, I equal to 3, it means that Z3 equal to x2 X2, and I equal to 4, Z4 equal to y2। Y2. So it means that ये तो 1 1 घूमना चाहिए, ये 1 2 घूमना चाहिए, ये 3 4 घूमेगा तो ये 2 2 रहना चाहिए। तो what we do, if we go I equal to 1 while I less than equal to let us say n, ये जाएगा 50 बार, 1 है 2 है, जेड के लिए जाएगा। Z के लिए। हम्म, लेकिन Z में ये क्या आना चाहिए, Z1 है तो ये X1 आना चाहिए, Z2 है तो क्या होना चाहिए, Y1। नाउ हाउ टू डू दैट। सर ऐसा नहीं कर सकते हम, अगर फॉर लूप जब भी ले रहे हैं और 1 to m जा रहे हैं हम, जब भी जे जे रनिंग फ्रॉम 1 to m जा रहा है, तो हम लोग इफ में हम लोग डालेंगे जो, अगर मॉड्यूलो की वैल्यू अगर 0 को असाइन कर रही है तो हम लोग x देंगे, और एल्स लूप में अगर हम लोग मॉड्यूलो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम y असाइन कर रहे हैं, तो लूप बराबर वर्क करेगी। तो ये इंस्टेड ऑफ द मॉड्यूलो I वी हैव टू अप्लाई मॉड्यूलो J, इज इट? आप ऐसा नहीं नहीं बता सर, रहे हैं? वो नहीं नहीं सर, जे तो अपना मतलब आई जो है अपना, वो अपना फर्स्ट जेड के लिए है ना सर, वो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आई जब आई का मॉड्यूलो जब हम ले रहे हैं, तो अगर 0 आ रहा है उसका आंसर, तो हम लोग एक इवन और ऑड का जो है, एक हम लोग अगर आ रहा है तो एक बार एक्स असाइन करेंगे, एक बार वाई असाइन करेंगे ना, जब बोलो इक्वल्स टू प्रोग्राम 0। कैसे लिखना है? आप बोलो हाउ टू राइट, पहले क्या लिखे। तो जैसे वाइल लूप लिए हम लोग, वाइल आई आई लेस I देन equal इक्वल्स to टू 1 एम, while वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू I less than equal to n। एम। अभी फॉर फॉर लूप में जाएंगे ना सर, फॉर for आई जे इन j in 1 to 1 to m m, ब्रैकेट में, इफ ब्रैक अपना करली ब्रेसेस रहेंगे इसमें, इफ if आई मॉडुलो टू आई परसेंट I percentage modulo 2 equal to इज इक्वल्स टू 0, 0, देन इसका वैल्यू ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, जेड आई इक्वल्स टू वाई असाइन करेगा। z यहाँ पे equal इफ वाई y आई असाइन करेगा। y यस, I वाई आई, I वाई थोड़ी जे वाई जे वाई जे वाई जे, j, यस सर।
अच्छा, फिर? एंड एल्स लूप लेंगे अभी। हाँ, तो हम लोग इसमें अभी लेंगे कि मॉड्यूलो नॉट इक्वल्स टू 0, वापस एल्स हम में लोग। एल्स में तो वही का सीधा लेना है ना। तो फिर इफ एल्स स्टेटमेंट ही यूज कर सकते हैं ना उसके बदले। यहाँ नहीं, अगर वो भी चलेगा, यहाँ पर भी ऐसे आ सकता है मोस्ट ऑफ। पहला वाला भी था लेकिन इससे नहीं, चांसेस इसमें है। क्या होता है अभी देखते, देखो। दिस इज आई इक्वल टू आई प्लस वन। अब क्या होता है, इसको वेरीफाई करो। सपोज इफ यू गिव आई इक्वल टू वन, ठीक है, तो ओके। जे की लूप में एंटर हुए, जे इज रनिंग फ्रॉम वन टू एम। अब आपका यहाँ पे क्या होगा, वन नॉट इक्वल टू वन मॉड्यूलो टू जीरो है, नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, जेड वन के अंदर वाई वाई वन वन। है। यस सर। ओके, फिर वो क्या होगा, जे बिकम द टू, फिर वापिस आएगा आई, तो आई तो वन ही है, वन नॉट इक्वल टू, तो वो क्या असाइन करेगा, वाई टू असाइन करेगा। लाइकवाइज वो जेड वहां वन पे के अंदर इफ वाई में वाई एम असाइन करेगा। सर इफ में एक और कंपैरिजन भी। में जे डाल दिया तो, हम्म। इफ की कंडीशन में जे लगा दिया तो, जे परसेंटेज परसेंटेज टू कर सर दिया तो। सर एक और चीज कर सकते हैं, अभी मगर वो अभी राइट है अभी कि नहीं कंफर्म नहीं है। अभी एक मिनट, यहाँ पे आप सपोज जे कर रहे हो, जे हाँ इक्वल टू वन, वन हाँ मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो, हाँ। नहीं है, तो क्या करेगा, जेड वन के अंदर वो क्या करेगा, वाई एक्स वन वन। को असाइन करेगा। हाँ एक असाइन करेगा, करेक्ट। अब जेड टू हुआ तो क्या करेगा, जेड वन के अंदर वापिस क्या करेगा, क्योंकि आई तो वन ही है ना। तो सर ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम लोग एक नया हम लोग के भी डिफाइन कर लेते हैं जो 1 to m रन कर रहा है। तो हम लोग एक्स के लिए हम लोग जे को दे रहे हैं, तो वाई के लिए हम लोग के देंगे। तो सर साइमल्टेनियस चलेगा सर वो। बट अल्टीमेटली वापिस वो हो तो क्या रहा है। तो सर 1 to 1 2 आएगा ना, जैसे सर पहले Z1 के लिए Y1 गया, फिर हम्म, Z2 के लिए X1 आएगा, फिर हम जब Z3 पे जाएंगे तो Y2 होगा, और Z4 पे जाएंगे तो X2 होगा, ऐसा होगा सर। तो हम लोग ने फॉर तो लूप यहाँ पर दिया है। जेड टू पे लिए तो पहले यहाँ वाइल में पहुंचना चाहिए ना। हम क्या पहुंच रहे हैं, अंदर पहुंच रहे हैं। पॉइंट वही हो रहा है कि फॉर के अंदर अंदर घूम रहा है, फॉर खत्म करके बाहर नहीं निकल रहे हम लोग। अब आप जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, लेटेस्ट से फोर लूप को यहाँ जे लूप को अंदर ले जाते हैं। सर वहां सपोज पे एम के बदले टू कर दिया तो फॉर के कंडीशन में सपोज जे आई। इक्वल टू, यहाँ इसको पहले घुमाया, फिर ये वाइल अंदर ले गए, ठीक है, तो हम्म। जे इक्वल टू वन है। अब आप क्या करेंगे, वन इक्वल नॉट इक्वल टू टू, तो यहाँ पे आई लूप घुमाएंगे अंदर, तो जेड वन होगा, फिर जेड टू आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो दिस इज द थिंग कि उसको कैसे करे। यस, एनीवन? सर वो फॉर लूप में एम दिया उसके बदले टू लगा दिया तो वन यहाँ टू। टू, टू लगा यहाँ के टू लगा के क्या मतलब है। कुछ फायदा ही नहीं है ना, तो 1 to 2 ही देखो रन लूप करेगा। 1 to 2 रन करेगा, लूप के बाहर वन किया, Z1 में एक्स असाइन कर दिया, टू किया तो वाई असाइन हो जाएगा। लूप खत्म हो गया, बाहर आ गया, इंक्रीमेंट किया, आई के बदले टू हो गया, वाई ऊपर जाके फिर कंडीशन चेक करके वो रन होएगा ना फिर। हम्म, ये यहाँ पे कुछ जे की लूप वन टू आई लेते हैं तो क्या होता है, आई इक्वल टू वन है, तो जे क्या होगा, वन। तो आइधर वो आई इक्वल टू, आई इक्वल टू आपका क्या है, वन है, तो जे वन इक्वल टू वाई वन, जे टू इक्वल टू, वो भी जे वन इक्वल टू एक्स वन वाई वन, वो होता रहे। ठीक है, जे वन इक्वल टू ये हो गया, फिर ना आई इक्वल टू टू गया, तो जे क्या होगा, वन से टू घूमेगा। बट कंडीशन आप किसके ऊपर दे रहे हैं, आई के ऊपर। ये ट्राई कर सकते हैं।
सी क्या होता है? देखो सपोज यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, ओके, तो जे कहाँ जाएगा? 1 से आई तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपने पास वही है ना कि वाई जे जे एन तक जाएगा, तो एन तो 50 है नहीं अपने पास। वो आई तो नहीं चलेगा सर, क्योंकि अगर जे तक जा रहा है तो फिर जब जे की वैल्यू बढ़ते से जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो फिर कितना वो हो जाएगा। 50 तक हो जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि हर बार एक काउंटर हमें अप्लाई करना है फोर लूप के अंदर। फोर लूप 1 to m होगा, लेकिन वो काउंटर असाइन होगा कि आई हर हमेशा एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। आई में इंक्रीमेंट ऐसा कर सकते हैं ना कि जे इक्वल टू 1 आपका है तो आई 1 होना चाहिए। जे इक्वल टू आपका 2 है, तब आई आपका कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ऐसा इस टाइप का कुछ काउंटर। नहीं समझ में आया सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये डिस्कशन सेशन ही रखा है हमने। सपोज ये मैं ऐसा बता रहा हूँ कि Z1 में आप एक्स असाइन कर दिया x1, फिर i आपका क्या है? अपने आप बढ़ेगा, i इक्वल टू 2। i प्लस 1। हाँ, तब आप Z2 में क्या असाइन करेंगे? वाई 1। y1। फिर वापस काउंटर बढ़ेगा तो Z3 में क्या होगा? x1 x2। xj। एंड Z4 में क्या होगा? yj। तो यहाँ पे ये आपका i रहेगा, ये आपका i प्लस 1 रहेगा। i हम 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हर बार एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। और वाइल लूप कहाँ जाएगी? 25 तक। तो चलेगा? इसको m तक ले जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका m तक जाएगा। z ऑफ i इज इक्वल टू x। तो भी हम कहाँ घुमाने की जरूरत है? x ऑफ i एंड z ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू y है। कर सकते हैं i इक्वल टू i प्लस 1। क्या होगा ये? सपोज i इक्वल टू 1 है, तो z1 इक्वल टू क्या साइन करेगा? x1। और यहाँ पे z2 क्या करेगा? क्या करेगा बताइए? वाई आई की वैल्यू लेगा, वाई 1 लेगा। y1, ठीक है। फिर यहाँ पे i क्या हो गया? 3 हो जाएगा, नहीं 2 2। होगा। तो फिर ये z2 वापिस आ जाएगा, तो फिर ओवरराइड हो गड़बड़ हो जाएगा। जाएगी। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 आना चाहिए। तो इसके अंदर आप 2 सर ऐड करो तो एक बीच में कर सकते हैं कि नहीं नहीं, एक मिनट। i यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं?
एक्स आई की वैल्यू असाइन कर, एक्स z1 में x1 असाइन किया, हम्म, z1 में x1 असाइन किया। इसको हम जे करें, जे जे इक्वल टू 1। ठीक है, और i इक्वल टू आई प्लस 1। लेटेस्ट है i इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1। लूप तो 25 तक घूम रही है, तो J1 है तो Z1 में X1 असाइन होगा, और Z2 में बिकॉज J1 है तो Y1 असाइन होगा। फिर J को हम क्या कर रहे हैं, 1 है उसमें 2 ऐड हुआ तो J3 हुआ। ठीक है, ये आएगा X2, तो क्या है में एक इंक्रीमेंट है, ये होगा Y2। फिर ये क्या होगा, 2 है तो ये क्या आएगा, फिर गड़बड़ होगी। ये यहाँ पे 3, 1 प्लस 2 तो ये 3 हो गया है, ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वापस क्या होगा, ये तो 2 होगा, 2 होगा ना, इंक्रीमेंट होगा तो हाँ 2 होगा, तो ये फिर वापस क्या आएगा, 2 प्लस 2, ये तो 4 5 वापस आएगा। देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है, कितना 25 आए वापस, तो कुछ और राइट हो रहा है ना। I1 J1 है, यहाँ पे J2, तब I1 है। अब J क्या हो गया, 3 हो गया क्योंकि उसमें ऐड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट में N4, क्योंकि I आपका यहाँ पे ये 25 तक ही जाएगा, जेड भी। 25 तक नहीं जाएगा, वहां पे हम लोगों ने 25 लिमिट दिया है, m के बदले n कर दीजिए तो हो जाएगा वाइल की तो कंडीशन ये में। वापिस तो वही तो गड़बड़ है ना, ये फिर 50 तक कहाँ जाएगा। नहीं जाएगा ना सर, अगर हम लोग वो कंपैरिजन में 25 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा ना। वाइल की कंडीशन हमने क्या दी है, i लेस देन और इक्वल टू 25, बट हमको वो लेस देन और इक्वल हमने टू 50 कंडीशन चाहिए। I के ऊपर दी है ना, J के ऊपर कहाँ दी है हमने। तो I Z1 मैं वही तो बता रहा हूँ ना, दिस शुड बी I टेक्स वैल्यू 1। इफ आई एम राइटिंग इन दिस वे, मैं क्या लिख रहा हूँ, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू M। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ZJ इज इक्वल टू X ऑफ I। ये वाइल में है। फिर क्या लगू, JZ+1 इज इक्वल टू X ऑफ सॉरी Y ऑफ I। तो I1 है, J इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू M, आप एंटर हुए, J क्या है 1 है, उसको X असाइन किया, J
क्या है यहाँ पे j+1 दैट इज z2, उसको क्या असाइन किया y1। अब आप क्या कहते हैं, एक्चुअली i इक्वल टू i+1 करते हैं, एक इंक्रीमेंट देते हैं, और j इक्वल टू क्या लिख रहे हैं i+2। तो i क्या है आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ ना, तो इंक्रीमेंट तो बाद में देंगे, पहले इसको इंक्रीमेंट करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो i2 हो गया, i2 हो गया तो j हो गया 4 और 5, तो ये तो 3 और 4 कहाँ चला गया, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, नीचे लिखा। तो व्हाट इज योर नेक्स्ट j बिकम दी i+2, तो i+2 क्या है 3, तो j अभी आपका क्या है 3 है, तो उसमें उसके बाद आपने क्या लिखा i इक्वल टू i+1, तो i क्या हुआ 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू m, यस, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो z3 इक्वल टू x2, z4 इक्वल टू y2। ठीक है, अब आपका वापिस क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है कि i जो है आपका 2 है, तो j क्या हुआ 4 हुआ, तो यहाँ जाएगा तो 4 में वापस रिप्लेस करेगा, जबकि 4 में आपका y2 बैठा है। तो दैट इज हाउ यहाँ पे क्या करे, अगर j को यहाँ 0 से शुरू करो, यहाँ j+1 लिखो, यहाँ पे j+2 लिखो, तो क्या हो रहा है, वही है, 3 तो ऐड नहीं कर सकते हैं, 3 किया तो यहाँ पे वो 4 हो जाएगा। इसलिए वो ओवरराइड कर रहा है 25, वो क्यों निकल रहा है, क्योंकि Z4 वापस रिपीट हो रहा है। बोलिए क्या करेंगे, तो जनरेशन करना तो आसान है, लेकिन बाद में उसको जब भी ये स्ट्रक्चर में ले जाना, इट विल रिक्वायर द लॉजिक। बोलिए एनी सजेशंस। बताइए। सोच रहे सर, हम्म, सोच रहे हैं। कंफ्यूज है सर थोड़ा सा। कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं, बट क्या लॉजिक लगेगा समझ क्लिक नहीं समझ। वो सबको सोचना है, सिर्फ ये अब 2-3 लोगों को नहीं सोचना है, एवरीवन हैज टू थिंक। क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना कि हमें इंटर्नशिप करनी है, हमें प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो यही सारी चीजें कि सपोज इफ आई विश द आउटपुट इन दिस स्ट्रक्चर, व्हाट शुड बी द लॉजिक। सर मैंने एक ट्राई हेलो, सर मैंने एक जगह ट्राई की है अभी, लेकिन थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें। कौन सा। तो यही सर मैंने अभी ट्राई कर रहा था आर पे, हम्म, तो एरर आ रहा है। मैंने सर वही फॉर लूप का 2 यूज करके कर रहा था। हम्म,
कोई ट्रू फॉल्स नीडेड करके एरर दे रहा है। चैट बॉक्स में लिखो। एक सेकंड सर। बोलो। यस सर कर। तो सपोज इफ वी डू लाइक दैट, सपोज जे के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं जे मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 1, तो z1 इक्वल टू x1। अदरवाइज क्या होगा, z3 इक्वल टू y1। z3 आएगा कि z2 आएगा, z2। ठीक है। अगर आपका j मॉड्यूलर 2, अब j इक्वल टू 2 लिया तो गड़बड़ हो गया। j इक्वल टू 2, सपोज j 1 है तो z1 में x1 एंटर करेगा। ये आपका इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट चाहिए ना हमें, तो j इक्वल टू आपका 3 है, यहाँ पे इंक्रीमेंट सपोज 1 का कर रहा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे i1 है, यहाँ जाएगा i। ठीक है। तो j इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 है, 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1। यस, तो z1 में वो असाइन करेगा x1। ठीक है। यहाँ पे एल्स पार्ट में तो जाएगा नहीं। सर अब मैंने यहाँ, कमेंट में लगा चेक। अभी एक मिनट, अभी यहाँ पे j इक्वल टू आपका, अभी तो j 2 हुआ ही नहीं है, फिर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो j बिकम दी 2। तो और i क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे j2 नॉट इक्वल टू 2, तो वो क्या करेगा, z3 में y2 को, तो ये तो गड़बड़ वाला, ये भी काम नहीं करेगा। i लेस देन इक्वल टू i इक्वल टू, तो इफ एल्स का एरर आपको देगा ना, क्योंकि एल्स पार्ट आपने दिया नहीं है ना। हाँ सर वही कंफ्यूजन है, बाकी तो सपोज आपने आई ऊपर भी आई दिया, नीचे भी आप, ठीक है, आई इक्वल टू 1 है। इफ z1 नहीं, वो आई नॉट इक्वल टू आपको देना पड़ेगा, z1 में तो आप असाइन कर रहा है। ये प्रोग्राम को आपको करना है, टेस्ट किया है इसे। तो यहाँ पे आप जो बता रहे हैं, पहली गलती आपकी क्या है, पहली तो ये है, जेड आई में वैल्यू है ही नहीं अभी, ये रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये
ठीक है। ओके। अभी आपने i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, यस। अब j कहाँ से 1 to 25 तक M। घूमेंगे, ठीक है। अगर 1 मॉड्यूलो 2 0 है, नहीं है, तो z1 में क्या करेगा, y1 असाइन करेगा। YJ। तो ये है तो y2 करेगा। ये तो इसमें है नहीं, तो कहाँ पे जाएगा, आपने j का इंक्रीमेंट दे दिया। इंक्रीमेंट क्यों दिया, एल्स पार्ट तो आप आए ही नहीं अभी। अगर ये ट्रू सर है तो इंक्रीमेंट देंगे ना आप। सर सर तो हम इसमें ऐसा एल्स पार्ट डाल के कर एल्स में, सकते हैं। हाँ, एल्स में सर फॉर लूप दौड़ा सकते हैं क्या सर ये? नहीं नहीं, जैसे ये सब दौड़ा सकते हैं, लेकिन आपका ये जे क्या है, आपने वो तो हमने वही किया था ना, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, देन फिर फोर लूप में जे 1 to m दिया, एल्स में आप वो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो जे 25 तक घूमेगा, तो वो रिप्लेसमेंट कर रहा है। लास्ट में जो जे 25 आएगा ना, एम वाई 25, वो असाइन करेगा z1 को। अच्छा, तो लेकिन ये सर अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर सर साथ में रन हो रहे हैं तो फिर x1 y1 x2 y2 ऐसे आंसर्स आएंगे, तो फिर z1 z2 z3 z4 ऐसे असाइन कैसे होंगे। x1 y1 आएंगे, ये देखो, ये आपका ये नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाएगा, तो एल्स पार्ट में आप बोल रहे हैं कि के वाले पार्ट में जाए, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ यस सर वही बोल रहा था, वो समझ ही था इंक्रीमेंट तो मेरे को। यहाँ देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इंक्रीमेंट तो ये ले ही रहा है यहाँ पे जे के लूप में। ओके। तो इंक्रीमेंट तो देने की इंक्रीमेंट वहां से हट जाएगा, ये आप हटा दो, एल्स लिखो, एल्स जाएगा, एल्स लिख देंगे वहां पे। ओके, ये काम करता है। के भी हट जाएगा सर। हाँ लेकिन वहां पे एक इंक्रीमेंट तो देना पड़ेगा ना तक। पर ये काम ही नहीं करेगा, मैं वो बोल रहा हूँ। ये आपका जो है, यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिया, 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, यस, नो, ठीक है। नहीं है तो कहाँ जाएगा, एल्स एल्स में पार्ट। जाएगा। एल्स में जाएगा, वहां पे वो लूप चेक करेगा। तो एक्चुअली एल्स में फिर ये चेक करने की जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा वो फोर लूप में ऐसा ही नहीं चाहिए ना। हाँ, यस सर, एल्स में कर सकते हैं वो भी, इफ लूप हटा के इसकी तो जरूरत, डायरेक्ट दे सकते हैं। यस सर। हमने तो वही तो किया है। अब ये दिया एल्स में, हाँ, तो क्या करेगा, z1 ये में क्या करेगा, एक्स के असाइन x1 करेगा, असाइन करेगा, x1 असाइन करेगा। यस सर। x1। फिर z1 में ये तो लूप घूमेगा ना कितने, 1 to m टाइम, तो फिर z1 में वापस क्या x2 असाइन करेगा, फिर z1 में क्या करेगा, x3 करेगा। सर लाइकवाइज आई वो का हर भी, बार, तो फिर वहां लेकिन पे आई का फॉर भी तो लूप हटा इंक्रीमेंट के होगा ना सर, लेकिन सर आई आई का का भी तो इंक्रीमेंट अभी नहीं होगा ना। आई का इंक्रीमेंट ये लूप से बाहर निकलेंगे बाद में, यहाँ पे आप दे रहे आई इक्वल टू आई को आई स्टार प्लस प्लस वन। 1। सर लेकिन के ये का क्या, वैल्यू केवल असाइन कर दिया और फिर फॉर लूप वहां से हटा के नीचे इंक्रीमेंट दिया तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, ये फोर लूप आपको यहाँ चाहिए ही नहीं एक्चुअली। हाँ वही। के लेकिन में एक सर इंक्रीमेंट चाहिए, जेड में इंक्रीमेंट चाहिए। एक्चुअली मैंने सर वो मतलब x1 x2 ऐसे आया ना, इसलिए मैंने सर एक और फॉर लूप डाला है के करके, तो और सर यहाँ वो पे के में वैसा भी रीड करेगा। इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो क्या है कि हर बार उसमें इंक्रीमेंट दे रहे हैं के में। हमें क्या चाहिए, एक्चुअली इंक्रीमेंट आई में चाहिए, और आई इक्वल टू 1 है तब के 1 होना चाहिए, आई इक्वल टू 2 है तब भी के 1 होना चाहिए, सो दैट वी कैन असाइन x1 y1। तो सर वहां पे लूप हटा के की वैल्यू कांस्टेंट रख दिया तो क्या होएगा? वो तो के कांस्टेंट हो गया ना, फिर उसमें इंक्रीमेंट कहाँ से होगा। मतलब ही नहीं है। वो भी है। चलो बाकी क्या क्या कर रहा है। बताइए। See, you all are in the semester 4. Everyone has to develop the approach of problem solving, because now after this you may will go for the job. If you will not develop your logic,
then perhaps it may not help you while getting the job. क्योंकि आजकल जॉब में क्या है कि आपके परसेंटेज नहीं देखते, आपको बैठा देते हैं डेटा दे के कि दिस इज माई डेटा, कैन यू वर्क आउट दिस, कैन यू राइट दी code for this, and if you can, you will have the job. बताइए। तो ये सोचिए आप, अगर आपको होमवर्क में सोचना है तो होमवर्क में सोचिए, ठीक है, मैं भी सोचता हूँ। तब तक हम दूसरी मेथड से जनरेट करते हैं एंड रैंडम नंबर फ्रॉम नॉर्मल 01 using Marshall method. Okay, what is the formula for that? So what is the procedure? So it is saying that generate U1 and U2 from uniform. So again it is generating the pair. तो हम इसमें कहते हैं let us say x1 vector of numeric y1 vector of numeric, then एक z लगेगा। z तो बाद में 50 तो बाद में करेंगे ना, अभी तो उसमें हमें पता ही नहीं है कैसे करना है, तो अभी तो इतना ही पकड़ के चलते। n इक्वल टू 50, so m equal to n by 2, then we'll just generate the random numbers. So we'll apply the while loop, I equal to 1 while I less than equal to n, u1 equal to r unit 1, u2 equal to r unit 2. So we have generated this. Now we have to calculate v1 and v2 and s. So v1 equal to twice of u1 minus 1 here, and v2 equal to twice of u2 minus 1, and s equal to v1 square plus v2 square. Now what is saying that if s greater than 1, then we have to return to the step 1. तो क्या करेंगे, s कैलकुलेट कर किया करके उसको कंपेयर करेंगे ना 1 के साथ डायरेक्ट।
डायरेक्ट तो कंपेयर अगर करके रखेंगे एस ना यहाँ एस ग्रेटर देन 1 है तो आपको क्या करना है, पे। वो स्टेप तो 1 में वापस स्टेप स्टेप जाना है। अगेन यू हाँ हैव स्टेप टू 1 में। जनरेट दी रैंडम U1 नंबर्स। U2 अगर नहीं है नहीं है तो स्टेप 4 में जाना है। तो यहाँ पे हमें दूसरी लूप चाहिए। हाँ लेकिन सर वो एस के बाद लगेगा ना। वाइल एस ग्रेटर देन 1, वाइल कंडीशन। अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेंगे, आप अंदर रहेंगे। जैसे ही आपका ग्रेटर देन से 1 बाहर हुआ तो क्या करेंगे आप, सर एस को कंपैरिजन ऑपरेटर दिया ही नहीं है यहाँ पे। ओके करते हैं लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे x इक्वल टू माइनस एक्स आई इक्वल टू एस रूट क्यू ऑफ आर टी ऑफ -2 2 log s of log s by s log s s हो बाय होल डिवाइडेड बाय s। हाँ बराबर है, इंटू सही है। वी वन इंटू v1 इंटू वी वन एंड बाई आई इक्वल टू सेम इंटू वी टू। ठीक है, तो एस क्यू आर टी दिस वी वन की जगह पे हम वी टू। एंड देन आप क्या करेंगे, आई का इंक्रीमेंट आई इक्वल टू आई प्लस 1, देन यू कैन हैव प्रिंट ऑफ एक्स एंड वाई। लेट अस सी। यहाँ पे व्हाट इज द कंडीशन, तो हमें एस में इनिशियली कंडीशन देना पड़ेगा। सपोज एस की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, सर हमने एस इनिशिएट ही नहीं किया तो व्हाइल लूप रन कैसे होगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ दिया होगा, नहीं दिया है तो हम दे देते हैं। हमें क्या है, वाइल लूप के अंदर एंटर होना है ना। हाँ इफ एस इज या पे आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है आपका आई। अगर एस की वैल्यू 1 से ज्यादा यस है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे एंड u1 अच्छा, तो ये भी गड़बड़ नहीं होगा। एस को वेक्टर के जैसा यूज करेंगे तो नहीं होएगा। नहीं वेक्टर तो नहीं, पर एस ही लेते 1, ये बढ़ गया तो क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म जनरेट किया, v1 जनरेट किया, v2 किया एंड फिर एस कैलकुलेट किया। अगर एस की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा, यहाँ लूप पे के बाहर आ x1 है, जाएगा। x लूप के। कम है तो लूप से बाहर निकलेगा और x एंड y कैलकुलेट करेगा, फिर i इक्वल टू अब 2 लेगा। 2 लेगा तो s क्या है, 1 से बड़ा है, नहीं है, तो वो तो करेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे s की वैल्यू हमें को कहाँ पता है कितनी है। अगर वो 1 से ज्यादा है तो क्या करेगा, करेगा सेकेंड लूप के बाहर आएगा एस अगर ग्रेटर देन 1 नहीं अंदर जाएगा लूप के। दिस इज ऑल्सो ए गुड प्रोग्राम। इनिशियली आपने सपोज s इक्वल टू दे दिया आपने, सपोज आप कहते हैं कि s इक्वल टू 1, तो यहाँ पे दिया आपने कहा कि s इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब नया s बदलेगा ना, s क्या वही का वही है, s तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अच्छा, तो वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर s लेस देन 1 है तो आप क्या करेंगे, यू विल जनरेट द रैंडम नंबर्स। तो ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
अब सही है? आई का इंक्रीमेंट बाहर आएगा, नहीं हो जाएगा आई थिंक। एस यहाँ पे आप ले रहे हैं, एस लेस देन 1 है तो क्या करेगा वो, u1 u2 जनरेट करेगा, v1 v2 और x1 में x2 में प्रिंट करेगा। लेकिन हो सकता है s की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो क्या करें, यहाँ पे आप if लूप बोले, हम if लूप लगा लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ तो उसको करना तो है ना, वापिस अनदर रैंडम वेरिएबल जनरेट करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बराबर है, लेकिन हमें तो क्या है कि ये तो प्रिंटिंग तो सबसे लास्ट में ना, कंडीशन पहले इसमें है, तो ये वाला तो अंदर नहीं आएगा, तो बराबर लिखा था मैंने, ये इज ग्रेटर देन 1 है, इज ग्रेटर देन 1 है तो ये चलता रहेगा, क्योंकि वाइल लूप है ना, इसमें इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। इसको इनिशियली 1.2 दे देता हूँ, मैं 50 हो गए जनरेट, सब सेम आ गए, ये तो m जाएगा। बोलिए, एक्चुअली हमारा पहला तो यही है, i इक्वल टू 1 है तब की बात है, ये लूप घूमनी चाहिए, लूप घूम रही है, नहीं दे रहा है। ओ एस क्यों वेक्टर हो गया, इसलिए गड़बड़ हो रही है भाई, एस इज अ वेक्टर, हमने कहीं वेक्टर दिया, ये u1 आया, ये u2 आया, u2 टू कहाँ से हो गया, अच्छा सर हम लोग ने 2 लिखा है सर वहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा ये गड़बड़ क्यों हो रही है। अब देखो एस की वैल्यू क्या है ये, तो हमें है कि भाई ये नहीं है, तो वो क्या करेगा, एस चेक करेगा, ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, तो ये ठीक है, ये आ गया, तो x1 हो गया,
ठीक है, यहाँ पे इसका वाइल लूप हो गया, 2 हो गया। अब लेकिन एस तो है ही नहीं ग्रेटर देन 1, तो वो क्या करेगा, हर बार वही का वही प्रिंट करेगा। हमें वापस इसको लूप के अंदर तो ले जाना पड़ेगा ना। ये एस 1 से ज्यादा हुआ तो ही वो चेक करने जाएगा। तो ये तो कम है, तो यहाँ तुरंत उसने प्रिंट कर दिया एक्स एंड वाई। अब आई इक्वल टू 2 लेंगे, फिर वो चेक करेगा एस 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं इनिशियल वैल्यू ऑफ एस, ऊपर नहीं देते। तो ये भी गलत है। देखो ये आ गया, ये आ गया, तो क्या करेगा, चेक करेगा। नहीं है तो क्या करेगा, वो अपने आप वही का वही वैल्यू देता रहेगा। अब ये हुआ तो क्या हुआ, उसने दूसरा जनरेट करना चाहिए ना यूनिफॉर्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको ऐसे बाहर ले जाते हो तो क्या होता है। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। पता चलता है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। अरे नहीं सर। नो सर। इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है ना। तो मैं क्या है, मैं भी अकेला अकेला बैठे बैठे करता रहूंगा, जाने दो ना। ऐसा होगा। नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं लेकिन कुछ आई लॉजिक। इक्वल टू नबी यहाँ पे वो नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया, आई इक्वल टू 1 ये सब कैलकुलेट किया, वेरीफाई किया एस। एस अगर 1 से कम है तो ही ये, क्योंकि हम है नहीं, ऐसा नहीं, हमें क्या है वापिस उसको करना है ना। तो एस लेस देन 1 है, नहीं है, तो क्या करेगा, वो चेक करेगा। 1 है तो वो असाइन करेगा, लेकिन नहीं है तो क्या करेगा, तो उसको वापस जनरेट करना पड़ेगा ना। बट वो एक लूप घूमता रहना चाहिए, यहाँ तो लूप भी नहीं घूम रही है। सर आई का इंक्रीमेंट नहीं दिया है। नहीं दिया है, दिया है। तो देखो घूम रहा है अपने आप। हाँ, इनफाइनाइट लूप में चला गया। वो तो चेक करता रहेगा ना हमेशा, यस सर। लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए उसको। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रिंट देते हैं, प्रिंट एस, तो पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, पहले ट्रूथ में गया है कि नहीं। एक ही आउटपुट आ गया। ठीक है, अभी नीचे दूसरा आएगा, यहाँ पे एंटर देंगे ना। टाइम लग रहा है सर, लूप में गया वापस। टाइम लगेगा सर दूसरा वैल्यू आने में। इतना टाइम नहीं आता, इसका मतलब हमारा लॉजिक गलत है। पहली बार उसने तो यहाँ ले लिया, कहाँ उड़ा दिया हमने, पूरा लिखा तो
तो कंट्रोल Z करो। ये जो था वो लॉजिक गलत है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक रैंडम नंबर यूनिफॉर्म किया v1 v2, नाउ यू आर अप्लाइंग द कंडीशन ऑन s। अगर s ग्रेटर देन 1 है तो ये वापस ये प्रोसीजर करना चाहिए। तो एवरी टाइम इट हैज टू चेक s ग्रेटर देन 1 है तो ये। और जैसे ही s लेस देन 1 है तो वो प्रिंट देना चाहिए। या नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो गड़बड़ में है। ठीक है, इफ आप बोले कि हम इफ ले लेते हैं, सपोज कि हम ये करें, इफ s इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये प्रिंट हो। ठीक है, else लेकिन वो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, फिर ऐसे ही घूमता रहेगा वो। else में से डाल सकते हैं क्या हम, अगर else ऐसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू करके? एल्स की जरूरत नहीं है ना, चलेगा ना। ये हो रहा है, लेकिन इसने कितने जनरेट किए, कुछ चेक किए बिना, कुछ चेक किए बिना उसने दे दिए। x1 न्यू जीरो क्योंकि हमने x लिखा है, यहाँ पे x1 आएगा, ये आएगा y1। ओके। लेकिन ये 25 आए, ये 25 ही लिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है ये? यहाँ पे आपको लगाना है तो हम j इक्वल टू 1 लगा के उसका भी काउंटर देख सकते हैं। j इक्वल टू प्लस 1, कहाँ तक पहुंचा है j, 40 तक पहुंचा, मतलब ये काम कर रहा है। ऐसा हुआ ना, j 2 से शुरू हुआ होगा है, j प्लस 1 से दिया, इसलिए इसका मतलब ये काम कर रहा है। ओके, तो व्हाइल लूप की जरूरत नहीं है। अगर इफ ये है तो अदरवाइज वो कहाँ जाएगा, वापिस ऊपर आएगा। इंक्रीमेंट तो दिया नहीं है तो ऐसे ही अंदर घूमता रहेगा। ओके, समझा। ठीक है, यस सर। इट इज जनरेटिंग। तो वी कैन वेरीफाई इन दिस वे कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू जस्ट गिवन द काउंटर, सो देखना है कि वो वैल्यू सेम है कि अलग अलग है। तो क्या करते हैं, सी बाइंड करते हैं। यस हाँ, अलग अलग आ रही है। ठीक है, so it is a generated random numbers from using the Marshall-Glea method। बस अभी हमें वो देखना है कि उसको कैसे, ये समझ में आया ना कि यस सर। we will generate uniform random numbers, calculated v1 and v2, calculate s,
ठीक है. Now we will check that whether the s is less than 1. If yes, then we will take एक assigned x1 as this and y1 as this और इंक्रीमेंट करेंगे. I इक्वल टू 2 होगा तो 2 यहाँ जाएगा. 2 लेस देन इक्वल टू दिस. अगर ये है तो. नहीं है तो क्या करेगा? ये लूप तो खत्म हुई. फिर वापस वो क्या आएगा? यहाँ आना चाहिए ना. अपने आप आ रहा है. C++ में हम क्या करते थे? गो टू स्टेटमेंट असाइन करते थे. यस सर. सर मेरे को ये सर जे का वापस से बता दीजिए ना सर. जे का समझा नहीं मुझे. जे तो आपने मैंने जे इंक्रीमेंट दिया यहाँ पे देखने के लिए कि मैं 25 ही ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि 25 से ज्यादा बार वो घूम रहा है. ओके क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक क्या वो घूमेगा ना. तो अगर ओके 25 बार ही घूम रहा है इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ है. 25 से ज्यादा घूम रहा है, 25 और 25 से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि कहीं ऐसा हुआ है कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है. और वो हम देख सकते हैं यहाँ पे. जैसे आगे हमने बताया कि वो 40 बार घूमा. तो आप देखो है 4 5 6 7. अब ये बढ़ गया 1 से. इसका मतलब है कि वो नहीं चलेगा. तो एक बार ज्यादा घूमना जाए. फिर ये दूसरा मिला. फिर ओके चल कंटिन्यू चल रहा है. तीसरा. उसमें भी काउंटर लगा सकते हैं. चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. बराबर. तो सात हो गए तो 25 प्लस 7 32. और हमारा नंबर कहाँ से? 2 से शुरू हो रहा है तो 33 तक जाएगा. यस तो इट मीन्स दैट दिस इज वर्किंग. ओके. ओके. So I always prefer के do the experiment. पहले से तो तैयार करके तो कर ही सकते हैं, लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करोगे that will be beneficial. लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो बाकी का बाकी रहा. कौन सा? उसको कैसे मल्ट करना है. ट्राई करते हैं आज. आप लोग एब्सेंट कौन है सिर्फ वही बता दीजिए. 84 में से सिर्फ 3 लोग एब्सेंट है. तो कौन एब्सेंट है? 86 है ना. 84. 49 और 37 है. ओके